Hello students, good morning. Myself Dr. D.K. Sinha with some non-communicable and fungal disease. इसके पहले की वीडियो लेक्चर में अब तक आप लोगों ने वायरल डिजीज, बैक्टीरियल डिजीज, हेलमेंथिस डिजीज, प्रोटोजोनल डिजीज के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे फंगल डिजीज, डिजीज काउज्ड बाय फंगस, फंगल डिजीज। ओके, diseases caused by fungi. Generally, a disease ringworm is caused by fungi, and term name ringworm is misnomer. Name is misnomer. यह सही नाम नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज इट नॉट काउज्ड बाय worms. It is caused by fungi. होता है फंजाई से, लेकिन नाम है रिंग वॉर्म्स. इट मीन्स इट इज ए मिसनोमर. एंड द फंजाई दैट काउज रिंग वॉर्म इज डर्मेटोफाइट्स. ओके, डर्मेटोफाइट्स फंजाई causes ringworm and dermatophytes is genera. Some other members it also caused by dermatophyton, epidermatophyton, and microsporum. These are the causing agent of ringworms. Okay, generally this fungi affects the different parts of the body. It affects different body parts. Such as skin, hair, and nails. And the pathogens feed upon keratin protein present in these parts of the body. Okay, pathogens means fungi feed on keratin protein present in skin, hair, and nails. Okay, on the basis of affected body parts, affected organs, ringworm is classified into different groups or parts. किस बॉडी पार्ट्स को यह इफेक्ट कर रहा है, उसके आधार पर इसे हम एक से अधिक ग्रुप में डिवाइड करते हैं. जैसे एथलीट्स फूड्स, रिंगवॉर्म, occurs in foot. Okay, that is called athlete foods. So on the basis of affected parts, it may be of different types, such as athlete's foot, genital itch, barber's itch,
onchomycosis, ringworm, etc. These are the different forms of fungal disease. Athlete foot affects foot. Okay. Genital, groin. Barber-Sich, face. Onchomycosis, nail. Ringworm, anywhere. In any part of the body. बॉडी के किसी पार्ट को यह डैमेज कर सकता है. ठीक है. अब देखिए, इट इज काउज्ड बाई ट्राइकोफाइटॉन रबरम. Athlete's foot is caused by Trichophyton rubrum. Genital is also caused by Trichophyton rubrum. ठीक है. नेक्स्ट, Barber-Sich affects face, caused by Trichophyton mentagrophytes, caused by Trichophyton mentagrophytes. Okay, Trichophyton mentagrophytes. Onchomycosis also caused by Trichophyton rubrum. And it is caused by Trichophyton microsporum, etc. So these are the different types of fungi that causes a skin disease or fungal diseases. ठीक है. ट्रांसमिशन की बात करें, transmission of fungal disease by soil, by cloths, comb, other equipment of patient. क्लॉथ्स में जैसे कि अगर टॉवेल वगैरह की बात करें, ठीक है, जो टॉवेल पेशेंट के द्वारा, इफेक्टेड पर्सन के द्वारा यूज किया गया है, अगर उसी टॉवेल को कोई हेल्दी पर्सन यूज करता है तो वैसे कंडीशन में इसका ट्रांसमिशन होता है. और खास करके मॉइस्ट मीन्स मॉइस्चर एंड हीट हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ फंजाई, helps in growth of these fungi, especially in स्किन फोल्ड. बॉडी के जिस पार्ट में स्किन फोल्ड होता है, सच एज ग्रोइन, कर सकते हैं बिटवीन द टूज, etc. In this part of body, these fungi grow very fastly. Okay? Symptoms की बात करें, जैसा कि नाम है रिंग वॉर्म्स. In this disease, a ring-like, radish ring-like structures are formed. सिम्टम की अगर हम बात करें, rings of a small blisters are formed.
बॉडी के जिस पार्ट में भी इन्फेक्शन होगा, ठीक है, वहां इस तरह से स्मॉल ब्लिस्टर्स का रिंग बनेगा। फंजाई ग्रो आउटवार्ड्स फ्रॉम रिंग। पहले रेड कलर का रिंग बनेगा, रेड कलर्ड रिंग इस तरह से, और धीरे धीरे यहां से यह ब्लिस्टर्स पूरे बॉडी में फैलना शुरू कर देगा, इचिंग काउज करेगा, बर्निंग सेंसेशन हो सकता है, सिक्रीशन ऑफ फ्लूइडी मटेरियल्स, etc. Okay, these are the symptoms of ringworm. Now prevention. Personal hygiene, cleanliness, avoid use of clothes of sick person, etc. These are the preventive measures of फंगल डिजीजेस। क्लियर? चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अब पर्सनल हाइजीन, क्लीननेस, अवॉइड यूज ऑफ क्लॉथ ऑफ सिक पर्सन, etc. HYGIE। चलिए अब देखिए, अब तक आप लोगों ने बहुत सारे वायरल डिजीज, बैक्टीरियल डिजीज, फंगल डिजीज, प्रोटोजोनल डिजीज की बात किया, मीन्स इन्फेक्शियस डिजीज, कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में जाना। इस कम्युनिकेबल डिजीज से बचने के लिए एक तो जिस मेथड से इसका ट्रांसमिशन हो रहा है उससे बचना चाहिए। अगर वेक्टर से हो रहा है तो वेक्टर को कंट्रोल करना चाहिए, बॉडी कांटेक्ट से हो रहा है तो उससे आइसोलेट रहना चाहिए, एयर और वाटर के द्वारा हो रहा है तो हमें फ्रेश एयर, फ्रेश फूड, फ्रेश वाटर का यूज करना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं अब सम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज मीन्स diseases not transmit from sick person to healthy person. Okay, it may be due to deficiency of vitamins, जनरली कॉल्ड डिफिशियंटी डिजॉर्डर्स, तो लिख सकते हैं हम इट मे बी, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, डिफिशियंसी डिजॉर्डर्स। सेकंड, डीजेनरेटिव डिजॉर्डर्स और डिजीजेस, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, etc. These are the example of non communicable disease. अगर हम डिफिशियंसी डिजीज की बात करें, ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन्स, ड्यू टू मिनरल्स, ड्यू टू न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स में ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन, क्वासियोरकर डिजीज इज काउज्ड, मिनरल्स में ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ आयरन, एनीमिया अकर्स, एंड अगर विटामिन की बात करें, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन, causes
A vitaminosis, also called hypovitaminosis. Okay, and vitamin is of different types, also having some chemical names such as vitamin A, B, commonly called B complex, is of three types, many types, B1, B2, B3, etc. Chemical name of vitamin A, retinol, B1, thiamine, B2 riboflavin, B3 नियासिन। ठीक है, B3 विटामिन और B5 विटामिन में नाम कहीं कहीं चेंज भी मिलेगा। B3 कुछ बुक में कहीं आपको मिलेगा B5 इज नियासिन। ओके, एंड B3 पैंटोथेनिक एसिड। ठीक है, विटामिन ए काउजेस नाइट ब्लाइंडनेस, जीरोपथैल्मिया, जीरोपथैल्मिया मीन्स कीरेटिनाइज्ड कंजंक्टिवा, यानी कंजक्टिवा ये पार्ट ऑफ आई, कंजक्टिवा के ऊपर केराटिन का डिपोजिशन हो जाता है जिसके कारण कि वह ओपेक हो जाता है। सेकेंड इज थायमीन काउज बेरी लॉस ऑफ एपेटाइट, कॉन्स्टिपेशन, बेरी लॉस ऑफ एपेटाइट, डबल पी, लॉस ऑफ एपेटाइट, constipation, etc. Okay, vitamin B2 riboflavin causes cirrhosis. Due to deficiency of vitamin B2 riboflavin, cirrhosis disease is caused, in which digestive disorder takes place, burning sensation occurs, digestive disorders, burning sensation, etc. takes place. Next, B3 is niacin. Niacin caused a disease called pellagra due to deficiency of vitamin B3. पेलाग्रा, डर्मेटाइटिस, डर्मेटाइटिस में स्किन के ऊपर स्पॉट का बनना शुरू हो जाता है, फॉर्मेशन ऑफ स्पॉट्स। ठीक है, इन्फ्लामेशन ऑफ गट म्यूकस, etc. These are the diseases caused by deficiency of niacin. Next, B5 pantothenic acid, pyridoxine, साइनोकोबालामीन, एस्कॉर्बिक एसिड, एर्गोकैल्सिफेरॉल, टोकोफेरॉल, phyloquinone. These are the chemical name of different vitamins.
B5 पैंटोथेनिक काउज डर्मेटाइटिस, पायरिडॉक्सिन ऑल्सो डर्मेटाइटिस, कन्वल्सन नौसिया एनेमिया, साइनोकोबालामिन, परनीसियस एनेमिया, चेंज इन शेप ऑफ आरबीसी टेक्स प्लेस। ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड काउज अस्कर्वी, डी रिकेट्स, ऑस्टियोमलेशिया, जिसमें कि बॉडी का साइज धीरे धीरे सूखना शुरू करता है, काफी लीन और थिन पर्सन हो जाता है। रिकेट्स चाइल्ड के लिए, ऑस्टियोमलेशिया एडल्ट के लिए। ठीक है ना। टोकोफेरॉल, अस्टर्लिटी, मस्कुलर एस्ट्रोफी, अस्टर्लिटी, muscular atrophy, abnormal function of muscles, and excess bleeding during injury। चलिए, तो ये हमने देखा डिफिशियंसी डिजीज और डिजीज कॉज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन्स। ओके, चलिए नॉन कम्युनिकेबल में एक और डिजीज हम देखते हैं, छोटा सा बात करते हैं डायबिटीज के बारे में। डायबिटीज इज नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। डायबिटीज इट इज ए हार्मोनल डिजीज और हार्मोन डिफिशियंसी डिजीज। Diabetes is of two types: diabetes mellitus and diabetes insipidus. Diabetes mellitus and diabetes insipidus. Okay, diabetes mellitus caused due to hyposecretion of insulin। ठीक है, डायबिटीज मेलिटस इंसिपिडस ड्यू टू हाइपोसिक्रीशन ऑफ ADH, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड और पोस्टीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। वाई इंसुलिन इज सीक्रेटेड बाई बीटा सेल्स ऑफ आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ठीक है, अब देखिए ऐसे जनरली जो बोलते हैं मेलिटस, इसमें क्या होता है, ग्लूकोज इन यूरिन के साथ ग्लूकोज का रिलीज होगा, रिमूवल होगा। यहां ग्लूकोज नॉट प्रेजेंट इन यूरिन। अब देखिए जरा सा ग्लूकोज मेलिटस की बात करें। ग्लूकोज मेलिटस इज ऑफ टू टाइप्स ऑल्सो। वन इज कॉल्ड इंसुलिन डिपेंडेंट, अदर इज नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट। In case of diabetes mellitus, the blood glucose level increases, so it is also called hyperglycemia, excess glucose in blood। ठीक है ना, it means in this disease sugar level increases। अब यहां देखिए दो तरह की बात आती है, इंसुलिन डिपेंडेंट एंड नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट। इंसुलिन डिपेंडेंट मीन्स अगर हाइपोसिक्रीशन होता है किसका, इंसुलिन का,
तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। इट मीन्स इंसुलिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिड्यूस मेंटेन द ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड एंड इट इज कॉल्ड hypoglycemic hormone because it reduces the amount of glucose in blood sugar। अब है कि ब्लड शुगर में यह ग्लूकोज के अमाउंट को कम कैसे करता है, तो इसका दो तरह का हो सकता है कारण। एक तो करता क्या है, इंक्रीज द अपटेक ऑफ ग्लूकोज बाय सेल्स। अगर सेल्स के द्वारा ग्लूकोज का यूज ज्यादा होने लगेगा, रिजल्ट क्या होगा, सेल्स से ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन हो जाएगा और ब्लड में शुगर का लेवल कम हो जाएगा। और दूसरा इसका केस है ग्लाइकोजेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजेन फ्रॉम ग्लूकोज डेट अकर्स इन लिवर सेल्स और इन मसल सेल्स। तो मसल सेल्स और लिवर सेल्स में अगर ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन में कन्वर्ट करेगा तो भी ग्लूकोज का लेवल घटेगा, ज्यादा यूज होगा तो भी ग्लूकोज घटेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया इंसुलिन पे डिपेंड कर रहा है कि इंसुलिन अगर कम निकलेगा ये प्रोसेस नहीं होगा, ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाएगा। लेकिन सेकंड की जो बात कर रहे हैं नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट, जो कि इंसुलिन पे डिपेंडेंट नहीं करता है। इन दिस कंडीशन इंसुलिन सीक्रेट्स इन प्रॉपर अमाउंट, जिस फॉर्म में जिस अमाउंट में वह निकल रहा है वह प्रॉपर अमाउंट में निकलता है, उसके अमाउंट में कमी नहीं होती है। लेकिन जो ब्लड में शुगर है उस शुगर को एब्जॉर्ब कराने में हेल्प कर रहा है इंसुलिन। इसका मतलब है कि सेल सरफेस पर, सेल मेम्ब्रेन पर इंसुलिन का रिसेप्टर है और वह शुगर अपटेक में हेल्प करता है। बट ड्यू टू एबनॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ रिसेप्टर, due to decrease in number of receptor, proper amount of sugar is not uptaken by cells and in this condition level of glucose increases। तो यहां जो कंडीशन होता है जिसके कारण होता है abnormal function of receptor और डिक्रीज इन नंबर ऑफ रिसेप्टर। अगर रिसेप्टर कम हो जाएगा तो ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा, वह प्रॉपर वे में फंक्शन नहीं करेगा, ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन कम होगा और ऐसे कंडीशन में ब्लड में शुगर का अमाउंट बढ़ जाएगा। तो हो गया इंसुलिन डिपेंडेंट और नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट, दो तरह का हुआ डायबिटीज मेलिटस की बात किया। सेकंड है इंसिपिडस दैट इज काउज ड्यू टू हाइपोसिक्रीशन ऑफ एडीएच। एडीएच का मेन फंक्शन क्या है? एडीएच इज सीक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द reabsorption of water, glucose in PCT और कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, तो यह कलेक्टिंग डक्ट में इसके एब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है और अगर इसका अमाउंट कम होता है तो प्रॉपर अमाउंट में वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, रिजल्ट क्या होगा? डाईयूरेसिस मीन्स एक्सेस यूरिनेशन का केस आता है। अब देखिए जब एक्सेस यूरिनेशन की बात आएगी रिजल्ट क्या होगा? थ्रस्ट ज्यादा होगा, ज्यादा प्यास लगे क्योंकि बॉडी से वाटर का लॉस हो रहा है और उस वाटर को मेंटेन करने के लिए ज्यादा प्यास लगती है उस, ठीक है ना। तो अभी इसका एक सिम्टम्स माना जाता है। इस तरह से अगर हम सिम्टम्स की बात करें, सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज हम कॉमन बात करते हैं।
एक्सेसिव यूरिनेशन, ठीक है। इसके बाद एक्सट्रीम थर्स्ट, that is also called polydipsia, ज्यादा प्यास लगने का कंडीशन का नाम दिया जाता है पॉलीडिस्पिया। हीलिंग ऑफ वुंड्स इज इम्पेयर्ड, जल्दी जो जख्म नहीं भरेगा, यह जनरली कंडीशंस है। और जनरल कंडीशन यह जो मैं बताया सिम्टम्स लगभग मेलिटस का है, ठीक है ना। यह किसका है? मेलिटस का है। और मेलिटस में भी एक और कंडीशन हो जाएगा। इसके कंडीशन की अगर बात करें तो वह है ग्लाइकोसूरिया, मीन्स ग्लूकोज इन यूरिन। इसमें यूरिन में ग्लूकोज होगा, इसमें यूरिन में ग्लूकोज नहीं होगा, ठीक है। चलिए, तो आज हमने देखा सब कुछ कम्युनिकेबल डिजीज। अब हम डिजीज की कहानी समाप्त करते हैं। ओके।